ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਟਸ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਗੀ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗੇ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਕਲਣ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਬਜਟ। ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਨ ਬਜਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਰ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ, ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਆਰ ਹੈਲਥ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਫਲੀ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਮੀਟ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਬਜਟਸ ਮੀਟ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਆਈ ਹੋਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਐਲੋਕੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲ ਪਾਣ। ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੋਟ ਮੋਰ ਵਿਦ ਆਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ 10 ਪੈਸੇ। ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹ, ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋ ਕਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿੱਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਹਥਿਆਰ, ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡਾ ਰਫਲੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ, 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਤੇ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੌਨ ਪੋਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਕੇजेस ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਡਰੱਗਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ, ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇयर इज नो ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਐਨੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀ
ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਬੈਟਰ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਬੈਟਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਲਸੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਿੱਧ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ROI ਬੜੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਰਮਲ ਸੜਕ ਵਾਂਗੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਿਟਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 75 ਸਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਸਾਈਟਸ ਤੇ ਐਪੈਥੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਓਪਿਕ ਸੋਚ, ਕਰਪਟ ਸੋਚ, ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਸੋਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ROI ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਬਸ ਫॉर ਸਰਟਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗਾ, ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਸਕੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। So but what could be done is they could be incentivized. ਜੇ ਕੁਝ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ, ਕੁਝ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੇਗੀ? ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਹਾਓ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੰਡੀ ਗਏ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਮੂਥ ਤੇ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕੇजेस ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਵ ਪ੍ਰੂਵਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਨਫ ਐਵੀਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁਡ वेक अप, डू मोर, whatever they are doing they can always do more. सर CA पर काफ़ी चर्चा हुआ था, आंदोलन भी हुए, विरोध भी हुआ, कुछ लोगों ने उसकी साइड भी ली कि CA होना चाहिए। अब CAA लागू होगा वेस्ट बंगाल में दिसंबर तक, ऐसा बीजेपी के MLA ने कहा है। देखो बीजेपी के MLA ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है आई डोंट नो, बट CA बिल शुड बी इम्प्लीमेंटेड, right? Every country in the world, they
basically they want to manage what kind of people are becoming their citizens and who should be made the citizen. इसका इम्पैक्ट कोई भी करंट पॉपुलेशन पे नहीं है. हम 30-40 सालों से एटलीस्ट मैं तो जब से टीवी देख रहा हूँ सुनता आया हूँ कि हमारे ऊपर एक तो हम वैसे डेवलपिंग कंट्री हैं, पर कैपिटा इनकम में काफी पीछे हैं. उसके ऊपर अगर हमारे रिसोर्सेज पे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, राइट, दे शुड बी क्वेश्चन एंड देयर शुड बी अ चेक ऑन इट. आप इस पे ब्लाइंड आई नहीं कर सकते. अनफॉर्चुनेटली आज हमारे जो ओपोजिशन है, दे वांट टू डू पॉलिटिक्स इवन विद द नेशनल सिक्योरिटी, राइट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आप आज की डेट में हर चीज अगर गवर्नमेंट बात करेगी, ऑफ कोर्स कोई भी बिल लाने की बात गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी. अगर गवर्नमेंट बात करेगी हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, विच इज अ नेसेसिटी, हर कॉमन सेंस वाला बंदा समझता है कि हमारे जब भी वो सड़क पे निकलता है, जब भी ट्रैफिक जाम में फंसा होता है, वो ये कहता है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है. जब भी वो लंबी लाइनों में लगा होता है, उसको लगता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है. जब भी वो ट्रेनों के धक्के खाता है, बसों में धक्के खाता है, सीट नहीं मिलती है, वो कहता है जी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है. बट जैसे ही इसको एक्चुअल जामा पहनाया जाता है कि भाई इसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसको रिलीजियस कम्युनल पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है. जी ये तो किसी कम्युनिटी के खिलाफ है. अरे भैया, जो कम्युनिटी इसको बेटर इंप्लीमेंट करेगी ना, अपने आप को रैशनलाइज करेगी. देखो, हमें सर्वाइव भी करना है, हमें सर्टेन पॉपुलेशन साइज चाहिए भी, बट हमें यह समझना पड़ेगा कि हम अगर लेट्स से चाइना के अब हम ऑलमोस्ट बराबर हैं, अगले साल आगे निकलने वाले हैं, तो आज हम ऑलमोस्ट बराबर मान लेते हैं. हमारा चाइना से 1/3 एरिया है, जो दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है. उसके बाद की कंट्रीज अगर आप देख लो, राइट, हमारी जो आबादी है उनसे 4 गुना है और एरिया 3 गुना लेस है, मतलब 1/12. इसी कारण तो वो लोग प्रॉस्परस हैं, राइट. वहां पे रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट बेटर है, राइट. तो मेरे को ये लगता है कि इस वक्त हमें हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए. और अगर सीए बिल आएगा, राइट, वो हर जगह पे इंप्लीमेंट होगा. इट्स अ नेशनल बिल, राइट. ये सिटीजनशिप हमारी नेशनल सिटीजनशिप है ना, डुअल सिटीजनशिप तो है ही नहीं. स्टेट गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, स्टेट गवर्नमेंट भी अननेसेसरी कई बार पॉलिटिक्स कर जाती है. जो बिल है, लेट्स सपोज अगर इंडिया ही परमिशन नहीं देता इंडिया में आने की, तो बंगाल परमिशन दे देगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा. हमारी सिंगल सिटीजनशिप है ना, डुअल सिटीजनशिप तो नहीं है ना. बिल्कुल. यूएसए की तरह ऐसा तो नहीं कि आप स्टेट के भी सिटीजन और कंट्री के भी सिटीजन हो. तो पहले तो बेसिकली फंडामेंटली लोगों में चीज क्लियर होनी चाहिए कि इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट, इट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. सिटीजनशिप इज इंडियन सिटीजनशिप. यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ पंजाब, यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ हरियाणा, यू आर नॉट सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया. ये हमेशा से यही है, इसमें कोई शक तो नहीं है ना. तो जो सीए बिल आना है वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, राइट. वो किस में आना है? वो कंट्री में आना है. वो जब इंप्लीमेंट होना है हर जगह होना है. कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब ये बात बोलती है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि वो किस बेसिस पे बोलती है. इसका मतलब कि वो ईमानदारी नहीं है. अगर स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है हम तो नहीं इंप्लीमेंट होने देंगे, कैसे रोकोगे? सो दैट इज द पॉइंट. दूसरी बात यह है कि अब ओपोजिशन को यह समझ लेना चाहिए कि जनता जागरूक हो रही है. वो फंडामेंटली बेसिकली फंडामेंटली करेक्ट क्वेश्चन पूछेगी, राइट. नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनलिज्म इज समथिंग विच इज बेटर फॉर द नेशन. हम अगर मिलके चलेंगे तो तरक्की करेंगे. सारी जिंदगी हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो आज उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम है. कोविड से ठीक पहले एक आंदोलन चल रहा था इसी बिल के खिलाफ, और वहां कुछ हैशटैग्स कॉमन फैले थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, और उसी के खिलाफ सोशल मीडिया पे चल रहा था कि कागज दिखाने पड़ेंगे. तो वो लोगों में क्या चर्चा चल रही है, कागज किसको दिखाने पड़ेंगे, किसको नहीं दिखाने पड़ेंगे, वो बड़ा डाउट है लोगों को. मैं तो जी उस बंदे को देखना चाहता हूँ जो कहता है जी कागज नहीं दिखाएंगे. जी सर, आपको अगर टोल प्लाजा से भी निकलना है, राइट, अगर आपके घर में गैस आ रही है तो आपने कागज दिखाए हुए हैं. बिल्कुल. कागज नहीं दिखाएंगे कि कोई मतलब ही नहीं है. अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप किसी भी कलर, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप इंडियन सिटीजन हो, राइट. इट इज नॉट अबाउट इंडियन सिटीजन, अगेन इट इज पॉलिटिसाइजिंग. बड़े शायरों ने बड़ा कुछ बोला सीए के बारे में, बड़े बड़े शायरों, आर्टिस्ट ने भी बोला. अब उन आर्टिस्ट और शायरों के पास बात करने का तरीका तो है, और शायद वो अपने मन में ये मान के भी बैठे हैं कि शायद कुछ गलत हो रहा है, और इसलिए वो उसको शायरी में पुट कर रहे हैं या आर्टिस्टिक तरीके से पुट कर रहे हैं, पर उससे वो चीज सच नहीं हो जाती. फैक्ट यही है कि नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल सेफ्टी के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज लिविंग इन द कंट्री. दैट इज द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सीए, राइट. हु इज नॉट सिटीजन, हु इज हियर फॉर द राइट रीजंस, हु इज हियर फॉर द रॉन्ग रीजंस,
राइट, किन किन लोगों को आप यहाँ पे शरण दे सकते हैं, राइट, किन को नहीं दे सकते। आपको देश चलाना है, सेफ्टी रखनी है, आप किसी को भी घुसने दोगे, राइट। तो मेरे को ये लगता है कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी डेंजरस। इससे धीरे धीरे हो क्या रहा है कि आप हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट, जितनी भी डेमोक्रेटिकली बिल्ट ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी कंट्री की, उससे आप लोगों का भरोसा उठाते हो। और कई लोग डीप डेप्थ में जाए बिना उन बातों को सच मान लेते हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। आप मेरे को बताओ अमन, मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगले 15 दिन बिना किसी को कागज दिखाए आप 15 दिन हिंदुस्तान में रह के दिखाओ। बिल्कुल नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं दिखाने ही पड़ेंगे। कहीं टिकट लेनी है, कुछ भी करना है, कहीं आपने फ्लाई करना है, राइट, आपको बैंक अकाउंट खोलना है, कागज दिखाते हैं ना। क्या ये हमारे लिए, क्या हम ये बोले जी हम अपने देश में आए, आप हमसे कागज क्यों पूछ रहे हो? क्या किसी ने बैंक में जाके ये बोला? आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बिल्कुल, आइडेंटिटी जरूरी है। और इसी के साथ जब ये सीए का शोर था, उसमें कई लीडर्स आए थे, कांग्रेस के भी कई लीडर थे, और कांग्रेस के वही लीडर राहुल गांधी जी जिनकी बात कर रहा हूं, और उन्होंने अब कहा कि भारत में डेमोक्रेसी इज डेड। देखो जी, डेमोक्रेसी की पराकाष्ठा थे गांधी फैमिली, ठीक है ना। उनके होते हुए, गांधी फैमिली के होते हुए ना कभी यहाँ पे इमरजेंसी आई, राइट, ना कभी करप्शन आई। तो अगर अब राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं तो ये सच ही होगा, है ना। हमें मान लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज डेड। बस डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या था वो सोचना थोड़ा अलग है। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर इनको ये लगता है, यही एक काइंड ऑफ सिंपैथी और यही काइंड ऑफ फॉल्स प्रोपोगेंडा कि जस्ट बिकॉज आपके ऊपर एक्शन हुआ है, आप, मैं एक सिंपल सा, अगेन मैं आज पब्लिक से बात कर रहा हूं, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पिछले 60-70 सालों में, जब से देश आजाद हुआ है, 75 साल होने वाले हैं इस साल, एक्यूरेटली बात करते हैं, क्या भारत में करप्शन नहीं थी? हर किसी का जवाब है थी, बहुत अच्छे लेवल पे थी, और हर ऊपर से लेके नीचे तक थी। तो और पिछले 75 सालों में मेजॉरिटी ईयर्स क्या गांधी फैमिली ने रूल नहीं किया? तो अगर जो लोग टॉप पे थे, जिनकी गवर्नमेंट ज्यादातर स्टेट्स में थी, जिनकी फैमिली से प्राइम मिनिस्टर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, और 2004 से 14 तक तो आप इस लेवल पे थे कि प्राइम मिनिस्टर को आप अकाउंटेबल था, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर के जो कागज थे आप फाड़ सकते थे पब्लिकली, आपकी इतनी बड़ी पावर थी, राइट। जब आपने इतने साल राज किया है, तो क्या आप, अगर करप्शन हुई थी तो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल माना चाहिए। आप कह रहे हो जी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो बहुत गरीब हूं, एंड 50,000 की जैकेट पहन के अगर बंदा बोलता है जी हम तो गरीब हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, राइट, अगर ये वो बोलते हैं तो मेरे को बताइए इस बात को कौन सच मानेगा? अगर वो कहते हैं जी मेरे पावर से हटते ही, देखो पिछली बार भी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, बीच में दूसरी गवर्नमेंट्स आई हैं, पर कांग्रेस को हमेशा यकीन था कि हम वापस दोबारा आएंगे, और वो आए भी। इस बार समहाउ मेरे को लगता है कि कांग्रेस का शायद अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस टूट गया है। उनको लगता है कि अब वापस आने के चांसेस नहीं है, जनता जाग चुकी है। इस कारण वो शायद बोल रहे हैं, इस कारण उन्होंने बहुत डेंजरस गेम शुरू कर दी है, जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हम सब डेमोक्रेटिक माइंडसेट वाले लोग हैं। वो ये जानते हैं कि हम डिक्टेटरशिप में बिलीव नहीं करते, हम सबका व्यू लेना पसंद करते हैं, ये इंडियन माइंडसेट है। तो आज उस माइंडसेट को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगेन उसी क्वेश्चन पे, 60 साल रफली आपकी फैमिली ने रूल किया, देश में करप्शन थी, सारे मानते हैं, तो क्या आपके करप्ट होने के चांसेस क्या हैं? आपकी अगर इंक्वायरी होती है तो इसमें हैरानी क्या है? राइट सर, यूएस, ताइवान और चाइना, ये 3 देश बहुत हाईलाइट हो रहे हैं। इंटरनेशनल खबर कहीं भी देखो ये तीनों देशों के नाम आ रहे हैं। और ताइवान में जब यूएस आया तो चाइना ने धमकी दी। अब क्या चाइना उसी स्टैंड पर है या थोड़ा पीछे हट रहा है, थोड़ा डर रहा है? यूएस सेनेट के स्पीकर नैंसी पेलोसी जब आने वाले थे, एक सेकंड के लिए तो लगा कि चाइना ने धमका दिया यूएसए को। जब जल्दी फोन कॉल हुई, जैसे ही चाइना ने धमकी दी, जल्दी प्रेसिडेंट्स की बात हुई, 2 घंटे तक बात हुई, और जो बाइडेन ने बड़ी ही ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि जिससे लग रहा था कि हम डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे भी, और क्लैरिटी नहीं आई कि वो ताइवान जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो एक बार ऐसा लगा कि शायद वर्ल्ड ऑर्डर में फाइनली चेंज आ गया है। बट यूएस ने अल्टीमेटली स्टेड देम बैक। यूएस ने
यूएस वहाँ पे गए, उनके सेनेट, उनके जो स्पीकर थे, शी वेंट देयर, नैंसी पेलोसी, शी वेंट देयर, शी एड्रेस्ड, शी मेट द प्रेसिडेंट, शी मेट पीपल ओवर देयर एंड शी सेड कैटेगोरिकली कि हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ हैं जी। राइट जब वो डेमोक्रेटिक कंट्री बोल देते हैं, इसका मतलब उसको सेपरेट कंट्री वो मानते हैं जी। और वो चाहते हैं कि इट शुड वर्क लाइक दैट जी। और चाइना में इस वक्त खुद इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ही एक हाई लेवल पे है। एक तो वहां पे आपने देखा होगा इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, 4000 के करीब बैंक बैंकरप्सी पे क्लोज होने की कगार में है, कितने लोगों के अकाउंट बंदी कर दे। पिक्चर बड़ी फेमस हुई थी जिसमें बैंक ब्रांच के बाहर टैंक खड़े थे जी। इस टाइम पे जब उनके प्रेसिडेंट जी जिनपिंग तीसरी प्रेसिडेंटशिप के लिए फाइट कर रहे हैं, इट हैज बिकम अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। चाइना ने आज ऐलान किया कि हम यूएस के साथ क्लाइमेट और कुछ और मुद्दों पे डिस्कशन इमीडिएटली बंद कर रहे हैं, जो अगेन पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर ये अभी बड़ा माइल्ड स्टेप है, इसके आगे क्या होता है अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स चाइना की डिफाइन करेगी। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लीडर्स जी जिनपिंग पे किस तरह का प्रेशर बनाते हैं, उनकी लाइफ कितनी मुश्किल करते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं बन रहा है, मैं आराम से थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, तो चीजें शायद ना एस्केलेट हो राइट। पर अगर ये नहीं होता है तो उनको स्ट्रॉन्ग एक्शन, उन्होंने ऑलरेडी ताइवान की तो काफी कंपनीज को बैन कर दिया है, क्या वो अमेरिकन कंपनीज को बैन करेंगे? ये अब आगे देखने वाली चीज होगी। इससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक एस्केलेशन होने की चांस है, जिससे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी रिसेशन पे एक फास्टर पेस पे जाएगी। आई होप कूल हेड्स विल प्रिवेल। अब इसका एक ऑफशूट ये हो सकता है कि इसका रिस्क इंडिया पे आए। अब अपने आप को शायद यूएस से डायरेक्टली पंगा ना लेने की बजाय शायद चाइना जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे वॉलेटिलिटी बढ़ा दे, वो इंडिया को एंगेज करना अग्रेसिवली ज्यादा शुरू कर दे। ये एक रिस्क है जो इंडिया पे इसके आने के चांस हैं। तो इंडिया को अपनी बॉर्डर सिचुएशन को और भी एक्टिवली मॉनिटर करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, कुछ लीडर्स की ईगो और कुछ लीडर्स की बेवकूफ़ियाँ कई लाख लोगों की जानें खतरे में डाल देती हैं। और ऐसा ही अब रशिया की जो हम बात कर रहे थे, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, उसी के बीच खबर आई थी कि न्यूक्लियर प्लांट है जो वो खतरे में है और रशिया इसको अंडरमाइन कर रहा है। देखो ये वॉर है राइट, जीने मरने का सवाल है और इसके अंदर जितनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ हो सकती हैं कहीं हो ही नहीं सकती। जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, हालांकि उसको यूक्रेनियन एम्प्लॉयज़ ही मैनेज कर रहे हैं, पर ऐसा माना जा रहा है कि रशिया शायद वहाँ से अटैक कर रहा है क्योंकि वापस वहाँ पे अटैक करना मुश्किल है यूक्रेन के लिए। तो ये बहुत ही रिस्की और ह्यूमैनिटेरियन रिस्क है, ये बहुत बड़ा जान का बहुत बड़ा खतरा है। और मेरा ये व्यू है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है उनको, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इस वक्त सारे ही जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनका एक्सेस दे देना चाहिए, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रहे, सेफ्टी रहे, ये बहुत क्रिटिकल है। और उस न्यूक्लियर प्लांट को, किसी भी न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज की सप्लाई कॉन्टिन्यूसली चाहिए चाहिए, जो एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है, जो वाटर की सप्लाई चाहिए होती है, वो कहीं से ना रुक जाए। ये सारे रिस्क को एक्सेस करने की, इस वक्त असेस करने की ज़रूरत है ताकि प्रिकॉशनरी स्टेप लिए जाएँ। ये होपफुली अगर ये हादसा हो जाता है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। दुनिया ऐसे हादसे झेल नहीं सकती और इससे एस्केलेशन के बहुत चांसेस बढ़ जाते। शुक्रिया सर, इस तरह के इंसाइट्स और मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।